Okay, come on our topic. So now your first question is कि find the number of moles. Mute your mic. Hello, all of you, mute your mic. Find number of moles, volume, and particles in 11 gram of carbon dioxide. Your question is to find the number of moles, volume. हेलो कोई स्वाति कुशवाहा Yes, स्वाति sir. कुशवाहा माइक क्यों नहीं आपकी हो? अनन्या उपाध्याय माइक म्यूट करो. अनन्या उपाध्याय, अनन्या पंडित माइक ऑफ करो. अनन्या उपाध्याय नहीं सुनाई दे रहा है क्या? हेलो अनन्या उपाध्याय सुनाई दे रहा है? अनन्या देखो बेटा कि योर क्वेश्चन इज, कल के ऊपर जो है, कल जो आपने पढ़ा है उस पर एक एग्जाम्पल है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम एंड पार्टिकल्स इन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो फॉर योर आंसर what is given here? Given that कि W carbon dioxide, that is weight of carbon dioxide is equal to 11 gram and molar mass of carbon dioxide is equal to 44 U. This is known, and for finding their number of moles, volume and particle, you can use the formula and then you will get the answer. How? For first, number of moles of carbon dioxide, that is NCO2. Number of moles of carbon dioxide is Good evening, sir. Good evening. N is क्या हो जाएगा बेटा? W by M. Now put the value 11 by 44. That is 1 by 4 is equal to 0.25 mole. 0.25. Clear? Second, for the second one, you have to calculate the volume. So volume of carbon dioxide, that is VCO2. तो टोटल वॉल्यूम, इसके लिए क्या करोगे? टोटल वॉल्यूम V इक्वल टू, बोलो, W बाई M इंटू 22.4. राइट द फार्मूला एंड यू विल गेट योर आंसर. क्या हो जाएगा? 11 बाई 44 इंटू 22.4. तो 1 बाई 4, दिस विल बी 5.6. दैट इज 5.6 liter. Your answer. Okay. Third, for the number of particles, that is capital N, total number of particles is equal to, formula क्या होता है? W by M into NA. अगर weight given है तो W by M into NA, यानी मास को मोल में चेंज करना हो तो N इक्वल टू W by M. मास को वॉल्यूम में चेंज करना हो तो वॉल्यूम इक्वल टू W by M into 22.4. and total number of particles, that is capital N, is equal to W by M into Avogadro number. If you put the value, you will get your answer. That is 11 by 44 into 6.022 into 10 to the power 23. That is 1 by 4.
इसमें जाओगे 4 से, तो 4 1 जा 4 2 20, that is 0.5, 4 5 जा 20, then 0 22, it means that 4 5 ja 20, 4 5 ja 20. Now the answer will be 1.505 into 10 to the power 23 molecule. This will be your answer. Okay. So in this way, it means that by applying the formula or by using the formula, you will get your answer very easily. Yes. What's your problem? Tell me. सर Yes. सर W का मतलब? W means weight of given material, that is carbon dioxide here. Okay sir. Thank you. So this is the way by which, by applying the direct formula which one is given by us yesterday, we can easily calculate the any one of the quantity, that is their number of moles, their number of particle, their volume or their mass. But out of 4, at least one quantity is given by which we can calculate the remaining quantity. Clear? At least one quantity will be given. With the help of that quantity, you will get the remaining 3 quantity. If you have any problem, you may ask your problem. No problem. Now, on the basis of this, can you solve some more examples yourself? Yes, sir. Yes sir. Now, solve one example. Write a question, or should I write? Yes, sir. Now see, suppose that कि you have, same manner में हम दे रहे हैं या ऐसे ही कर दें. Suppose that you are having 2 mole of water. Okay, you are having 2 mole of water and you have to calculate their weight, that is mass of water, then number of particles of water and volume of water. Okay, clear? अगर आपके पास 2 मोल वाटर है बेटा, इसका मास, इसमें पार्टिकल कितने होंगे और इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये आपको फाइंड करके बताना है. ओके, तो सॉल्व योरसेल्फ. कोई सॉल्व किया बेटा? Yes sir. बोलो, जिसका आंसर आया हो बेटा आप बताते रहोगे. Weight 36 gram. Weight is 36 gram. Yes, very good. Next. Yes sir. Weight 12.44 into 10 to the power 23 particles. Answer will be directly W is equal to M into 36. N, that is 18 into 2, that is 36 gram. Yes. Now next one is number of particle, that is N is equal to 12.04 and 23. 12.044 into 10 to the power 23. here capital N is equal to number of moles into Avogadro number Na, that is 2 into 6.022 into 10 power 23, that is 12.044 into 10 power 23. But अभी आप नहीं पढ़े हो, जान लेना बेटा. ए यार, हेलो हेलो हेलो, कौन है जी? घर पे बात करना शुरू कर देते यार. तुम लोगों को इतना समझाएं लेकिन एकदम से मूर्ख हो लगता है, तो वो गुस्सा आता है इतना.
क्लास में तो हो नहीं सामने, पर इतनी तमीज सीखो कि अगर पढ़ते हो या तो इतना क्षमता रखो कि तुम्हारे यहाँ एकदम शांत रहे, अदरवाइज म्यूट कर लेना चाहिए। इतनी तमीज सीखो पढ़ते समय। 11 तक पहुंच गए लेकिन इतनी बुद्धि नहीं है, बकबक करना शुरू कर दोगे पढ़ते समय। या तो कहो यहीं से म्यूट कर दूं, कहानी सुनते रहो तुम लोग, क्योंकि मूर्ख हो एकदम से पर डे समझाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। इतनी बुद्धि जरूर रखो, जब नहीं उस तरह की व्यवस्था है कि एकदम शांत रह सको तो म्यूट कर लो, जब पूछना हो तभी ऑन किया करो, और नहीं तो यहीं से म्यूट कर दें, आराम से कहानी सुन लो, उसके बाद रख दिया जाए। मैं तुम्हारे अच्छे के लिए करता हूँ कि ऑन रहो, लेकिन तुम मूर्ख हो तो समझाना बहुत कठिन है। यस बेटा, अभी ये टॉपिक नहीं पढ़े हो, बट इतना जान लो कि जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो डेसिमल के पहले 1 नंबर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्चुअल में इसका हो जाएगा r 1.2044 इंटू 10 टू द पावर, और डेसिमल लेफ्ट साइड में गया है 1 नंबर, तो 1 एक्सपोनेंट बढ़ जाएगा 24 मालिक्यूल हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा बेटा इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्या होगा बेटा, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू 44.2 liter. n इंटू 22.4, दैट इज 2 इंटू 4.8. 44.8 लीटर। ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और आसानी से जो भी गिवन क्वेश्चन हो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या उसका आसानी से कैलकुलेशन किया जा सकता है। ये डायरेक्ट फार्मूले पर होता है, ठीक ना, कि आसानी से वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अदर में प्रैक्टिस करिएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पूछते रहिएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है। ओके, नाउ हैव यू रिटन? सर वो 44.8 के बाद क्या लिखते हैं? लीटर होगा बेटा, वॉल्यूम है तो लीटर में आएगा आंसर। ओके सर। Next topic is most important, and this one is called as stoichiometry. Stoichiometry. Okay. हेलो सर जी, क्या बेटा? हेलो हेलो, किसके यहाँ से आवाज आ रही है? आप करें, इसलिए कि तुम लोग समझाने पर मानोगे नहीं। आप कर दें एकदम से, म्यूट कर दें, नो सर, इसलिए कि समझ पा नहीं रहे हो एकदम से, एकदम हरदम आवाज आती है, एक से एक मूर्ख बसे हैं जैसे ना। अब कुछ चीजें नहीं कहना चाहिए ना कि यूट्यूब पे जा रहा है, लेकिन उतनी भी तमीज नहीं है तो क्या करें, इन सबको समझाना एकदम से व्यर्थ है। या तो कभी पढ़े नहीं हैं, मूर्ख की तरह एकदम चिल्लाए हैं क्लास में। अगर जो है आवाज आई तो सभी को म्यूट कर देंगे, तो पढ़ो जिस तरह की तुम्हारी बुद्धि है, जैसे तुम पढ़ना चाहते हो उसी तरह, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। एकदम म्यूट कर देंगे, लास्ट में आराम से सोचते रहना क्या है उसका मतलब है। या तो म्यूट करो जब पूछना हो, जब मैं पूछूं कोई प्रॉब्लम हो आपको बताना हो तब फिर बतो करोगे, अदरवाइज म्यूट रखो। स्टैच्योमेट्री, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो स्टैच्योमेट्री word is taken out from 2 words. One is stretchion, that is element, and plus metron means measurement. Okay, तो स्टैच्योमेट्री वर्ड इज टेकन आउट फ्रॉम 2 words. स्टैच्योन मीन्स होता है एलिमेंट एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। बट यहां पर एक चीज और क्लियर कर लो बेटा कि एलिमेंट मीन्स यहां पर एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट का मतलब है
कि जब हम कोई भी रिएक्शन को लिखते हैं उसके जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स मीन्स कौन से हो गए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, उनको हम एलिमेंट्स ऑफ ए रिएक्शन बोलते हैं। जैसे 9th वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि एलिमेंट ऑफ फ्लोएम, एलिमेंट ऑफ जाइलम, तो जाइलम के एलिमेंट नहीं होते हैं, फ्लोएम के एलिमेंट नहीं होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं। कौन है जी पल पल सुना रहे हो तुम लोग, बस माइक ऑफ करो। Okay, now station means element and metron means measurement. It means कि जो स्टेचोमेट्री है ये 2 वर्ड से बनी हुई है और इसका मीनिंग है स्टेचोन दैट इज एलिमेंट प्लस मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। यहाँ पर एलिमेंट का मतलब होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स का मतलब केवल रिएक्टेंट से नहीं है, किसी केमिकल रिएक्शन में जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, यानी उसके जो एलिमेंट का मतलब जो एलिमेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है इससे नहीं मतलब है, एलिमेंट का मतलब है कि उसके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, और उसको मीजर करना, मीजर करना का मतलब है कि जैसे अगर हम कोई रिएक्शन लिखते हैं तो उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में या उस रिएक्शन के लिए डिजायर्ड अमाउंट में हमें कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है किस अमाउंट में चाहिए, कितना चाहिए, ये सब चीजों को मेजर कर किया जाता है और इस जो है पार्ट को हम स्टेचियोमेट्री कहते हैं। यानी पहले तो डेफिनेशन जान लो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ measurement of elements of a chemical reaction, that is reactant and products which are needed or required or produced in a given chemical reaction or during chemical combination, word आप use कर सकते हो। the branch of chemistry which deals with the study of measurement of or calculation of amount of reactant or products are both needed for a given chemical combination or chemical reaction is known as stoichiometry। यानी स्टेचियोमेट्री जो है बेटा वो किसी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं या प्रोडक्ट हैं उनकी कितनी क्वांटिटी नीड होगी, कितना प्रोडक्ट बनेगा, अगर हमें किसी डिजायर्ड अमाउंट में प्रोडक्ट चाहिए तो कितना रिएक्टेंट लगेगा, या किसी गिवन अमाउंट में रिएक्टेंट है तो कितना हमें प्रोडक्ट मिलेगा, इन सब चीजों की एक्सप्लेनेशन कौन देता है, स्टेचियोमेट्री देता है। ओके, और इसीलिए जो है इस को जो है हम स्टेचियोमेट्री कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखो, सबसे आसानी से आपको आ जाएगा। जैसे हम लिखा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ऑन हीटिंग इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक चीज देख लो बेटा, आप 10th में बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़े हो और उसमें एक क्वेश्चन दिया था, बैलेंसिंग इसमें भी है, बाद में बताएंगे इसके, लेकिन अभी आप जान लो कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। क्लास 10th का एक क्वेश्चन था, हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। अरे म्यूट कर लो बाबू। सर ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है दूसरा जो है, उससे हमें एग्जैक्ट। सर पता नहीं कौन है ये, मम्मी मम्मी कर रहा है। अब यार इसीलिए तो लगता है ना कि अब
या तो म्यूट कर दें, तो इसमें होता है ना कि मूर्खों के कारण से जो पढ़ लिखे हैं उनका भी नुकसान होता है, प्रॉब्लम यही आती है ना। और दो चार होता है ना। सबका नुकसान कराते हैं। अब एक और से दिख रहे हैं सभी ज्यादातर का माइक ऑन है, कुछ पूछना नहीं है ना कुछ बताना है, तब भी माइक ऑन करके तो देखो माइक ऑफ रखो, जब कोई प्रॉब्लम हो तब पूछो बेटा, नहीं तो हमें सबका माइक ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन नहीं कि हम उसी का ऑफ कर दें जिसका खुला है। तो आप तो मैं सबका करूंगा, फिर म्यूट करूंगा, अदरवाइज आप लोग थोड़ा सा समझो। देखो बेटा, जैसे जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन गिवन होती है उसमें हम जो है, एक तो रिएक्शन को बैलेंस लिखने से क्या होगा कि व्हाट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन द गिवन केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है आपने पहले ही कहा है ना, लॉ ऑफ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पहले ही कहा। तो इन चीजों में अब इस पे मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करो बेटा। यार कितने बड़े बेहुदा ग्रेट हो। चलो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बेटा म्यूट करने के। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या बैलेंस केमिकल रिएक्शन हर चीज है, वो अलग चीजें हैं, हम इसमें नई चीज आपको बताते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो गिवन है बेटा, उसमें क्या होता है कि उस पे आप मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करो और हर चीज को उस पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे इफ यू गिव दिस वन विद रिस्पेक्ट टू मास, इस पे आप रेशियो सब, इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास आप निकाले हो कई बार, बट जान लो क्या होगा 100। यानी इफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100 ग्राम, दिस विल गिव यू 40 plus 16, that is 56 gram calcium oxide and 44 gram of carbon dioxide. If you compare with respect to their mole, so if nothing is written here, it means that these are only 1 mole. That is, if 1 mole calcium carbonate will decompose, this will give you 1 mole calcium oxide and 1 mole of carbon dioxide. Okay, and with respect to their volume, तो वॉल्यूम में अगर हम कर लें, हालांकि वॉल्यूम जनरली गैसियस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अगर 1 मोल है इसमें भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा 22.4 लीटर 1 मोल है, ये भी 22.4 लीटर और ये भी 22.4 लीटर, लेकिन जनरली गैसियस स्टेट के लिए लिखते हैं। ये सभी हो जाएंगे। अब इन तीनों में से हम किसी को किसी से भी रिलेट कर सकते हैं। अब ऐसे भी देखो आप, इफ 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज देयर, दिस विल गिव यू 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर, 22.4 liter of carbon dioxide. Okay, if 100 gram calcium carbonate will decompose, this will gives you 56 gram calcium oxide or 1 mole of calcium oxide or 22.4 liter of calcium oxide. हम इसको with respect to carbon dioxide भी कह सकते हैं। For obtaining 44 gram of carbon dioxide, we need 100 gram of calcium carbonate. For 1 mole of carbon dioxide, we need 1 mole or 100 gram of calcium carbonate. मतलब किसी भी क्वांटिटी को किसी से आप रिलेट कर सकते हो। जिस टाइप का क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेशन करेंगे और इस तरह से जो भी न्यूमेरिकल दिया रहेगा, जो भी प्रॉब्लम्स दी रहेंगी, वहां पर एक चीज आप जान लो, ये चीजें हमको जानना सेल्फ में नेसेसरी है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट जो बताता है वो स्टैंडर्ड वैल्यू को बताता है बेटा। स्टैंडर्ड वैल्यू मींस
जो फिक्स वैल्यू है, जो स्पेशल कंडीशन में एक फिक्स क्वांटिटी के लिए एक स्पेशल कंडीशन जैसे एनटीपी एसटीपी की क्वांटिटी हमने पढ़ा है, उस पर ये चीजें होती हैं, तो उन चीजों पर एक्सप्लेन करता है। और अगर क्वांटिटी इससे अदर होगी यानी इससे लेस और मोर होगी तो बट नेचुरल है कि ये भी क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। क्लियर? जैसे आप देखो, अगर हम इसी को ले लें कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव यू 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इफ यू चेंज कि you have only 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो देन what amount of कार्बन डाइऑक्साइड will you get? देखो बेटा, स्टोइचियोमेट्री अब आपको एक्सप्लेन करेगा। अगर मान लो हम ग्राम ग्राम में रिलेशन को लें और आपसे कह दिया गया ये क्वांटिटी आपको खुद से फाइंड करना पड़ेगा, ऊपर जो गिवन है ये, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, लेकिन रिएक्शन जो गिवन रहेगी वो सिर्फ इतना रहेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड एज, वो गिवन रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट, देन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, केवल रिएक्शन गिवन होगी। देन आपसे क्वेश्चन आएगा, मान लो इस तरह पूछता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर ये पूछ लिया आपसे 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, उससे कितने ग्राम आप कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करोगे, इसके लिए क्या करोगे? अब आप रिएक्शन लिखोगे, फिर से आंसर में रिएक्शन में देखोगे तो लिखोगे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो दिस विल गिव यू 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप इसको सॉल्व करोगे इस तरह से, तो इसके लिए करना क्या है, सॉल्व करने के लिए एक चीज ध्यान दो, जिस वैल्यू को कैलकुलेट करना है उसको राइट साइड में लिखेंगे, जिससे कैलकुलेट करना है उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं और स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करते हैं। कैसे, क्या लिखोगे? सिंस 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 ग्राम, सो 1 gram will give you 44 by 100 gram, and how much have you? Only 50 gram, so 50 gram calcium carbonate will give you, क्या हो जाएगा? 44 into 50 by 100, देखो 52 जा 100 and 2 22 जा, that is 22. how much quantity? 22 gram of carbon dioxide. ओके, इस तरह से आएगा। सुनाई दे रहा है? समझा बेटा? Yes, Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा? हेलो, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ रही होगी? Yes, sir. आ रहा है. Yes sir. तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि इस तरह से आप अगर 50 ग्राम में पूछ रहा है तो आप कैलकुलेट करके आसानी से वैल्यू को निकाल सकते हो। कितना इस समझ में आया बेटा? आ जाएगा? तो वैल्यू Yes, sir. वैल्यू पुट करके आसानी से आप निकाल सकते हो। इसको लिख लियो तो हम Yes. अदर एग्जांपल भी आपको बताते हैं। यस हो गया है, इरेज कर दीजिए No, sir. भाई, स्क्रीन पे लो। कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम होगा, ये 50 ग्राम होगा। किसका है सर? हो गया सर। कुछ है उनको नहीं समझा सकते। हो गया? देखो बेटा, अब जैसे और सारे एग्जांपल हैं। सर आप म्यूट करिए। अनम्यूट कर दीजिए. अभिषेक सानी, अभिषेक सानी, यस उसी का है।
उसी आप की करो। आवाज आ रही है। अभिषेक साहनी म्यूट करो। आयुष विक्रम सिंह, प्रतिमा कुमारी, यस सर, आप करो। यस सर। ये कौन है? जैनुल फिरदौस कौन है? जमतुल फिरदौस, आप करो। जमतुल फिरदौस, ठीक ना? ना पूछना हो तो आप कर लो यार, तुम लोगों का ही नुकसान होता है। मैं आप कर दूंगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तुम ही लोगों का है। तो आदमी की तरह रहोगे तो तुम्हें लाभ मिलेगा, बीच में अपनी बात को रख सकते हो। अदरवाइज लास्ट में तो कहानी सुन लोगे, कुछ समझोगे या नहीं समझोगे, वो ना तो मुझे रिस्पांस दिखेगा ना आपको। तो थोड़ा देखते रहो। जैसे बेटा मान लो कि हम जो है अदर रिएक्शन लिखें, जैसे 2Na प्लस 2H2O, दिस विल गिव यू 2NaOH प्लस H2। ओके, या हम थोड़ी और छोटी रिएक्शन लिखें या इसी पे समझ लो। अब तो 11th में आ गए हो, थोड़ा बड़ा समझना की कोशिश करना पड़ेगा। देखो बेटा, ये मास में है, मास में क्या हो जाएगा? इसका 23 होता है, तो 23 2 जा 46 ग्राम। इसको देखो 18 और 2 कितना हो गया? 36 ग्राम। 30 ये Na23 1 24 एंड 16 दैट इज 40 ग्राम, और 40 में 2 से मल्टीप्लाई दैट इज 80 ग्राम, एंड दिस वन इज 2 ग्राम। ओके, देखो बेटा, अब अगर जो है मोल में करोगे तो मोल में देखो क्या होगा? सोडियम 2 मोल, वाटर 2 मोल, 2 मोल, 2 मोल, एंड 2 हाइड्रोजन मोल, 1 मोल, 1 मोल। 1 मोल। अब समझ आया? अगर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम sir. लिखो तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 इंटू 22.4, 2 इंटू 2.4 लीटर, 2 इंटू 22.4, 22.4, और ये कितना हो जाएगा? 22.4, 22.4 लीटर। 22. अब समझना है? देखो ये डेटा हमने दिया है आपको। मान लीजिए कि हमने आवाज नहीं आ रही। हेलो, आ रही है। आवाज जा रही है बेटा सबको? देखो बेटा, Yes, sir. अब देखो, केवल किसी एक को प्रॉब्लम हो बेटा, अपना नेटवर्क थोड़ा चेक कर लो। देखो ये डेटा हमने दिया है आपको, अगर हम इस पे आपसे क्वेश्चन पूछे तब कैसे करोगे? जैसे आप इस पर एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन obtained, calculate the volume of hydrogen obtained by। सर साउंड नहीं आ रहा है। हेलो, और सबको आवाज जा रही है कि नहीं बेटा? हेलो, आ रहा है सर। सर साउंड नहीं आ रहा है। हेलो, सर हमको भी साउंड नहीं आ रहा। और किसी को? नो सर, आ रहा। अब वॉल्यूम सब लोग मत ऑन करो बेटा। देख लो, अब क्लियर हुआ वॉइस बेटा? वॉइस क्लियर है? यस सर, ठीक। Yes, अब sir. देखो बेटा, यस सर। आपके लिए क्वेश्चन सिर्फ इतना है, इफ यू हैव ओनली 23 ग्राम ऑफ सोडियम, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन? क्लियर? आप क्वेश्चन समझ 1 ग्राम सर। अरे सुना करो बाबू, हमने क्या कहा? 23 ग्राम अगर सोडियम मेरे पास है तो कितना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हमें ऑब्टेन्ड होगा? सर किस क्वेश्चन में? इसी में? इसी में, इसके आधार पर आपको बताना है। देखो, आप किसी क्वांटिटी को किसी से मिक्स कर सकते हो। सर 11.2 लीटर। 11.2 लीटर हो जाएगा। यस सर। और एक चीज ध्यान दो सॉल्व करने के लिए, जिसको नहीं आ रहा हो, जो क्वांटिटी मैंने दिया है उसी को स्टैंडर्ड लेके, और जिसको कैलकुलेट करना है उसका स्टैंडर्ड लोगे, ठीक ना? जैसे हमने सोडियम का मास लिया तो सोडियम के मास को स्टैंडर्ड मानोगे, और कैलकुलेशन किससे करोगे? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से, ठीक ना? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से। तो कैसे करोगे? क्या लिखोगे? सिंस कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम गिव्स, कितना देगा? हाइड्रोजन इक्वल टू 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। सो 1 ग्राम विल गिव यू, क्या हो जाएगा? 22.4 by 46। 4 by 46। हाउ मच हैव यू? 23। तो क्या हो 23 जाएगा? ग्राम। डायरेक्टली नीचे दिख रहा है? नहीं दिख रहा हो तो यहीं पे क्या नो करोगे? सर, नहीं दिख रहा है ऊपर।
यहाँ से आ जाएगा 22 23 से यस मल्टीप्लाई, सर दिख रहा है तो 23 2 जा 46 और 2 डिवाइड हो जाएगा तो 11.2 11.2 दैट इज लीटर 11.2 लीटर हो जाएगा। अब समझ में आया? यस सर तो जिस क्वांटिटी को पूछ रहा है वो मैंने पहले बताया कि आप राइट साइड में लिखोगे, है ना, और जिससे आपको पूछ रहा है उस क्वांटिटी को आप लेफ्ट साइड में लिखोगे, आसानी से आ जाएगा। ये समझा? यस सर तो इस तरह से कर लोगे। और हम आपको एक आध एग्जांपल बताते हैं, 2-4 मिनट बाकी है तो इसी को समझ लो, तब नेक्स्ट टॉपिक कल शुरू करेंगे, ठीक ना? और एक 2-4 हम एग्जांपल करा दें जब तक टाइम है। लिख लियो बेटा, हम नेक्स्ट एग्जांपल आपको समझाएं। यस सर अगला समझाइए सर, अगला। अगला एग्जांपल देखो, देखो जैसे एकदम छोटा सा हम लिखते हैं C+O2 देन CO2 हुआ। अब मैं आपको कोई डेटा नहीं दूंगा, मुझे सिर्फ इतने से मतलब है कि इसको दे दिया है, अब आप खुद लिखोगे। क्या लिखा है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड obtained by 3 ग्राम ऑफ कार्बन। क्वेश्चन समझ में आया? यस Carbon reacts with oxygen and gives you carbon dioxide. Then you have to calculate the volume of carbon dioxide obtained by 3 ग्राम of carbon. अब इसमें वो डेटा भी लिखोगे। अच्छा एक चीज और जान लो, अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया है, रिएक्शन दिया है, तो आप सबको नहीं लिखोगे। इसमें मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद फिर आप बिना बताए वाला खुद लिखोगे। देखो इसमें क्या करोगे, क्वेश्चन तो समझ लो, क्वेश्चन इधर का मिटा दें, ऊपर समझाना है, मिटा दें नीचे वाला, ऐसे समझो। देखो इसमें जब रिएक्शन लिखोगे नीचे आंसर में पहले रिएक्शन लिखोगे, देन कार्बन का मास के रूप में दिया है तो कार्बन की क्वांटिटी मास में लिखोगे, और कार्बन डाइऑक्साइड का किस में लिखोगे? वॉल्यूम में, ठीक ना? इस समय जैसे कार्बन का मास दिया है तो कार्बन का स्टैंडर्ड मास में लिखोगे, तो कार्बन अगर 12 ग्राम है तो दिस विल गिव यू 22.4 लीटर, है कि नहीं? यस ना समझ? तो जो मास में दिया है उसका मास में, जो वॉल्यूम में दिया है उसका वॉल्यूम में लिखोगे। अब दिया है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल ऑब्टेन बाय 3 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन, तो 3 ग्राम कार्बन हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या वॉल्यूम ऑब्टेन होगा? इस तरह जब आप बना लो, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अगर इस तरह आप बना के लिख दो 5.6 लीटर होगा। नो सर 67.2 था। अरे बाबू 3 मोल है, कैसे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगी बाबू? वो तो 36 ग्राम होगा तब होगा। उल्टा कर रहे हो, कहीं मिस्टेक कर रहे हो बेटा। सॉरी सर, मैं मोल देख ली इसलिए मेरे को इसीलिए तो मिस्टेक है बेटा। देखो बेटा अगर इस तरह लिख लोगे तो आपको कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होने का चांस नहीं रहेगा, ठीक ना? आसानी से कर लोगे, अब आ जाएगा। बोलो। नहीं आया सर। देखो अब इसमें नहीं आया तो देख लो कैसे लिखोगे। सिंस 12 ग्राम ऑफ कार्बन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 22.4 लीटर, 4 लीटर, so 1 gram will give you 22.4 by 12. 3 gram will give you 22.4 into 3 by 12. तो 3 4 जा 12 और 4 में 5.6 से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड तो आ जाएगा 5.6 लीटर आंसर। ठीक आया बेटा?